بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، نعمان اجاز ایڈ ٹیک کی جانب سے حاضر ہوں۔ ویورز، یو آئی یو ایکس ڈیزائننگ کا جو کمپلیٹ کورس اس چینل پہ سٹارٹ کیا گیا ہے، اس میں ایچ ٹی ایم ایل کی جو ہماری سیریز چل رہی ہے اس میں آج کلاس نمبر 4 ہے، اور آج ہم اس میں لسٹ کے بارے میں جانیں گے کہ لسٹ کیا ہوتی ہیں اور ایچ ٹی ایم ایل میں لسٹ کس طرح سے مینٹین کی جاتی ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم نئے آنے والے سبسکرائبرز کو ویلکم کرتے ہیں، اور اپنے ان پرانے ویوز کو جو ہماری ویڈیوز کو ریگولرلی دیکھ رہے ہیں اور پریکٹس کر رہے ہیں اور ہمیں کمنٹس دے رہے ہیں کہ انہیں چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ رہی ہیں۔ تو بیسک پرپز بھی اس چینل کا یہی ہے کہ چیزیں آپ کو بالکل آسان وے میں سکھائی جائیں۔ یہ ایک پیورلی اسکل بیسڈ ٹریننگ ہے، اور اس میں کوئی ہائیلی کوالیفائڈ ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے اور آپ کمپیوٹر کی نو ہاؤ جانتے ہیں، کمپیوٹر پہ آپ موویز دیکھتے ہیں، گیمز کھیلتے ہیں، براؤزنگ کرتے ہیں، اور آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، تو آپ یہ پورا کورس بڑی آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آنے والے وقت میں یو آئی یو ایکس ڈیزائننگ کی فیلڈ کافی گرو کرنے والی ہے، کیونکہ موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ اور ویب ڈیولپمنٹ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہر بزنس کی ضرورت بنتی جا رہی ہیں، اور آنے والے وقت میں چاہے کوئی ہول سیلر ہے، ریٹیلر ہے، یا چھوٹے سے چھوٹا بزنس مین بھی ہے، تو یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہوگی کہ اس کو ایک ویب سائٹ یا موبائل اپلیکیشن اس کو اپنا بزنس رن کرنے کے لیے چاہیے ہوگی۔ اسٹوڈنٹس، جن ویورز کو ابھی تک یو آئی یو ایکس ڈیزائننگ کا زیادہ نہیں پتا، تو وہ میری فرسٹ کلاس جو انٹروڈکشن تھا یو آئی یو ایکس ڈیزائننگ کا، وہ لیکچر میرا دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ یو آئی یو ایکس ڈیزائننگ جو ہے یہ ٹوٹلی جو ہے 2 پرنسپلز پہ بیس کر رہی ہوتی ہے۔ نمبر 1 اپیلنگ، اور دوسرا ایزینس۔ جو بھی موبائل ایپ، ویب سائٹ یا کوئی سافٹ ویئر ہم بنانے جا رہے ہیں، نمبر 1 وہ تو دیکھنے والوں کے لیے اپیلنگ ہو، اس کا انٹرفیس جو ہے وہ لوگوں کو، یوز کرنے والوں کو اچھا لگنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ وہ جب اس کو یوز کریں تو وہ ان کے لیے ایزی اور سمپل ہو۔ اب انٹرفیس اپیلنگ کس طرح سے بنے گا؟ جب ہم یو آئی ڈیزائننگ سیکھیں گے، اور وہ اس میں ایزینس کیسے آئے گی کہ وہ یوز کرنے والوں کے لیے سمپل اور ایزی ہو، وہ تب ہوگا جب ہم یو ایکس ڈیزائننگ سیکھیں گے۔ ایک اور امپورٹنٹ بات کہ یہ جو فیلڈز ہیں جیسے گرافک ڈیزائننگ ہے، ویب ڈیزائننگ ہے، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے، یا آئی ٹی کی دوسری فیلڈز ہیں، تو ان میں آپ کی ڈگریز نہیں چلتی، ان میں آپ کی سکلز چلتی ہیں۔ انشاءاللہ جب یہ کورس کمپلیٹ ہوگا تو آپ ایک لیول پہ ہوں گے کہ آپ جاب حاصل کر سکیں گے یا بزنس اپنا سٹارٹ کر سکیں گے، فری لانسنگ کر سکیں گے۔ تو اس لیول پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے سی ویز کیسے اپنی پریپیئر کرنی ہے، آپ نے انٹرویوز کے لیے پریپریشن کیسے کرنی ہے، انٹرویوز میں کس طرح سے جانا ہے، کیا پہن کے جانا ہے، کس طرح سے اپیئر ہونا ہے، کس طرح سے کوسچنز کے آنسر دینے ہیں، اور اگر آپ فری لانسنگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کون سے پلیٹ فارم سے سٹارٹ کریں، اپنا پی آر کیسے ڈیولپ کریں، آپ بزنس کیسے حاصل کریں گے، اپنا پورٹ فولیو کیسے مینٹین کرنا ہے، بزنس کیسے لینا ہے کلائنٹ سے، کمیونیکیشن کلائنٹ سے کس طرح کرنی ہے، یا ایون آپ نے اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا ریسورسز ہونے چاہیے، آپ نے اپنی کوئی کمپنی رجسٹر کرنی ہے تو وہ رجسٹریشن کیسے ہوگی، اس کا کیا پروسیس ہے، آپ نے کلائنٹس کس طرح لانے ہیں کمپنی کے لیے، بزنس آگے کس طرح سے گرو کرنا ہے، یہ ساری ٹریننگز انشاءاللہ آپ کو اس چینل پہ ملیں گی۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم نے جو اپنے دور میں ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد فرسٹ جاب ایکوائر کرنے تک جو مشکلات ہم نے دیکھی ہیں وہ آپ لوگ نہ دیکھیں، اور آپ لوگ جلدی سے انڈسٹری میں اپنے قدم جمائیں، اور یہ ان امپلائمنٹ جو اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے ہماری کنٹری میں، اس کو اوور کم کریں اور امپلائمنٹ جنریٹ کرنے والے لوگ بن جائیں۔ اور انڈسٹریل ریولوشن کی بڑی بات ہو رہی ہے کہ ہم انڈسٹری 4.0 میں انٹر ہو چکے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، انڈسٹریل ریولوشن کیا ہے اور انڈسٹری 4.0 کی جو ٹرم ہے یہ کیا ہے؟
इसके मुतालिक मैं एक डिटेल्ड वीडियो इंशाल्लाह जल्द आपके सामने लेके आऊँगा, जिसमें आपको डिटेल से बताऊंगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है क्या और इंडस्ट्री 1.0 से इंडस्ट्री 4.0 तक हम किस तरह से पहुँचे हैं। अभी यहाँ पे सिंपली ये बताना चाहूँगा कि इंडस्ट्री 4.0 में इंटर होने का मतलब ये है कि हर चीज़ ऑनलाइन होने जा रही है और पूरी दुनिया जो है डिजिटाइज होने जा रही है। और अब जो आने वाला दौर है उसमें मशीन्स होंगी और मशीन्स ही आपस में कम्युनिकेट करेंगी और हमारे लिए डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगी। तो आने वाले वक्तों में जो हमारे फील्ड्स हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आईओटी है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेबसाइट डिज़ाइनिंग और यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग जो है, इनकी जो है डिमांड काफ़ी बढ़ जाएगी। मुझसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुद भी चीज़ें सीखें और उन लोगों तक भी पहुंचाएं जो कि नीडी पीपल हैं, उन दोस्तों से भी शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत हो सकती है। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं हमारे जिन्होंने मैट्रिक कर लिए, एफए एफएससी कर लिए या ग्रेजुएशन कर लिए और उनके पेरेंट्स के पास जो है उनकी हायर एजुकेशन के लिए पैसे नहीं हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ में। या जो बच्चे हैं जिनको क्लियर नहीं है, विजन नहीं क्लियर कि उन्होंने अब मैट्रिक कर लिया है, एफएफएससी कर लिया है, तो उन्होंने आगे क्या करना है। मतलब गवर्नमेंट की जॉब्स के पीछे ना भागें, गवर्नमेंट के पास जॉब्स नहीं है और अगर आप इस मुल्क में पैदा हो ही गए हैं तो गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भागते हुए इस मुल्क का बोझ ना बढ़ाएं, बल्कि इस मुल्क पे जो पहले से बोझ पड़ा हुआ है, जो बर्डन है, उस बर्डन को आप कम करने की कोशिश करें। सो ट्राई टू बिकम अ जॉब प्रोवाइडर रेदर देन अ जॉब सीकर। तो चलें, बातें बहुत सी हो गई हैं, हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे कि लिस्ट होती क्या है, व्हाट इज अ लिस्ट। उसके बाद हम देखेंगे लिस्ट की टाइप्स क्या हैं, जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ये क्या है, इनके बारे में जानेंगे। और फिर देखेंगे कि नेस्टेड लिस्ट क्या होती हैं। नेस्टेड लिस्ट मींस के लिस्ट विद इन अ लिस्ट, वो कैसे बनती हैं HTML में। So what is a list? A simple series of words or numerals such as the names of persons or objects. तो कोई भी वर्ड्स या नंबर्स अगर एक सीरीज में लिखे जाएं तो वो एक लिस्ट कहलाती है। जैसा कि अ लिस्ट ऑफ टॉप 5 स्टूडेंट्स, ये नीचे लिस्ट दी गई है जिसमें 5 स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं जो कि एक सीरीज की फॉर्म में लिखे गए हैं, तो ये एक लिस्ट है। नेक्स्ट, हॉरिजेंटल लिस्ट और वर्टिकल लिस्ट। स्टूडेंट लिस्ट हॉरिजेंटल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है। जैसा कि यहाँ जो नाम है वो एक सीरीज में लिखे गए हैं वर्टिकल फॉर्म में, और यहाँ पे वही नाम हॉरिजेंटल फॉर्म में लिखे गए हैं एक सीरीज की सूरत में, तो ये दोनों लिस्ट होंगी। अब देखा जाए तो क्या ये भी एक लिस्ट है? नहीं, ये लिस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें नाम तो लिखे गए हैं लेकिन एक सीरीज में, एक सीक्वेंस में नहीं लिखे गए, तो इसलिए ये एक लिस्ट नहीं है। नेक्स्ट है जी ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में उसका एक एट्रीब्यूट है टाइप। तो टाइप से क्या होता है, यहाँ पे देखें ये वही लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट है, लेकिन उसमें एक एट्रीब्यूट साथ आ गया टाइप का। टाइप इज इक्वल टू कैपिटल A लिखा हुआ है। तो अगर हम टाइप का एट्रीब्यूट नहीं लगाते तो बाय डिफॉल्ट हमें जो लिस्ट शो होगी वो 1 2 3 की फॉर्म में शो होगी। लेकिन हम अगर टाइप का एट्रीब्यूट लगा देते हैं और उसमें कोई वैल्यू दे देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कैपिटल A दे दिया, तो अब जो लिस्ट हमारी शो होगी वो इस तरह से लिस्ट आइटम जो सिंबल्स आएंगे वो ABC आएंगे। और अगर यहाँ पे इसी तरह अगर मैं यहाँ पे स्मॉल I दे देता हूँ तो वो हमारे जो लिस्ट आइटम की नंबरिंग आएगी वो इस तरह रोमन में आएगी। तो इस तरह से हम लिस्ट आइटम की जो है नंबरिंग कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जी हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट है जिसका टैग है DL। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है? ये लिस्ट होती है कि हमने जो लिस्ट आइटम दिया हुआ है DT से डिनोट होगा और उसके हम साथ में डिस्क्रिप्शन भी दे रहे हैं, इसीलिए इसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कहा जाता है। तो लिस्ट आइटम जो हमने देना है DL, याद रखिएगा DL जो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट जब हमने बनानी है तो उसका जो मेन टैग है वो है DL, और यहाँ पे क्लोज भी स्लैश के साथ DL होगा। के अंदर जो लिस्ट आइटम्स होंगे वो होंगे DT। DT मींस डेटा टाइप,
डेटा टाइप यहाँ से यहाँ पे ब्लू आ गया और उसकी डी मीन्स डेटा डिस्क्रिप्शन, तो डेटा डिस्क्रिप्शन में इसकी डेटा टाइप की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड डेटा टाइप आ जाएगी, जैसे रेड लिखा हुआ है और इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ गई जैसा कि लिखा हुआ है द कलर ऑफ एनर्जी। ये दो कलर्स लिखे हुए हैं और इनके एसोसिएशन कलर्स की यहाँ पे मेंशन की गई है। नेक्स्ट देख रहे हैं जी हम नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट मींस के लिस्ट विद इन अ लिस्ट। तो हम अगर कोई भी लिस्ट बनाएं और उसके अंदर हम कोई दूसरी लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं, तो उसका मेथड ये है कि हमने एक लिस्ट क्रिएट की, जैसे ये OL है, यहाँ पे इसकी टाइप लगी हुई है A, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था। तो ये जो है यहाँ से ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट खत्म हो रही है, और इसके अंदर लिस्ट आइटम्स जो हैं वो है पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर। और अब जो है फर्स्ट जो लिस्ट आइटम है उसके अंदर मुझे मजीद उसको कैटेगराइज अगर करना है, मजीद उसकी फॉर्म्स बतानी है, तो वहां पे मैं लिस्ट आइटम LI का जो टैग है इसमें जो वैल्यू दी गई है, इस लिस्ट आइटम के क्लोजिंग टैग से पहले ये इसका लिस्ट आइटम का क्लोजिंग टैग ये है, तो इस क्लोजिंग टैग से पहले हमने इसके अंदर एक और UL मींस अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर ली है और उसके दो लिस्ट आइटम्स यहाँ पे हमने दे दिए हैं। यहाँ पे जैसे फर्स्ट आइटम लिखा हुआ है पेंसिल और उसकी इनर लिस्ट में हमने उसकी मजीद दो फॉर्म्स बता दिए हैं कि पेंसिल है और पेंसिल की सब फॉर्म्स क्या हैं, 2B पेंसिल या HB पेंसिल। तो इस तरह से हम किसी भी लिस्ट के अंदर कोई भी और लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल नेस्टेड लिस्ट, हम एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल नेस्टेड लिस्ट यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा हम किसी भी ऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है या डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, उसके अंदर कोई भी दूसरी ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट या डिस्क्रिप्शन लिस्ट बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अब इसी कोड को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके ब्राउजर पे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे अपने AdTech का जो फोल्डर हमने बनाया था उसी में जाते हैं और यहाँ पे क्लास 3.html की जो फाइल हमने क्रिएट की थी इसको सबसे पहले डबल क्लिक करके ब्राउज़र में ओपन करके देखते हैं। तो इसकी ये आउटपुट आ रही थी। अब इसी फाइल को मैं राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस कर रहा हूँ। नोटपैड प्लस प्लस एक कोडिंग एडिटर है। जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता वो मेरा HTML का फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं कि हमने इसको कैसे इंस्टॉल किया था। तो मैं इसको एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस कर रहा हूँ। तो ये हमारा एडिटर ओपन हो गया और इसमें हमारा जो आउटपुट हमें ये नज़र आ रही है उसका कोड हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो अब ये जो बॉडी के टैग के अंदर जितना भी कोड है ये मैं रिमूव कर रहा हूँ और ये जो बाकी हमारा कोड है ये बेसिक कोड है। अगर इसके बारे में भी किसी को नहीं पता तो मेरा HTML का फर्स्ट लेक्चर ज़रूर देखें, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये बेसिक कोड क्या है और इसके अंदर ही हमने जो आउटपुट शो करवानी है वो बॉडी का जो टैग है इसके अंदर ही लिखना है जो भी आउटपुट हमने वेब पेज पे शो करवानी है। तो यहाँ से हम अपनी प्रेजेंटेशन से ही ये कोड कॉपी कर लेते हैं और इसको रन करके देखते हैं। एक अनऑर्डर लिस्ट को यहाँ पे नोटपैड में मैंने पेस्ट कर दिया तो ये उसने कुछ अजीब तरह शो किया है, शायद पावर पॉइंट की स्लाइड से कॉपी करने की वजह से। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। वर्ड की फाइल में भी मेरे पास ये कोड पड़ा हुआ है तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करके नोटपैड की बॉडी टैग के अंदर पेस्ट कर रहा हूँ। इस कोड को मैं टैब करके आगे ला रहा हूँ इंडेंटेशन के लिए। इंडेंटेशन के बारे में मैंने डिस्क्राइब किया था। अगर आप ये नहीं भी करते तो आउटपुट आपको प्रॉपर शो होगी, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कोडिंग करने के लिए, उनको जरूर फॉलो किया करें। तो इंडेंटेशन कर दिया करें ताकि स्ट्रक्चर आपका कोड का बिल्कुल प्रॉपर रहे और बाद में आपको उसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम ना आए। तो इस फाइल को मैं यहाँ से कंट्रोल S करके सेव कर रहा हूँ और यहाँ पे ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमें लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉपुलर फ्रूट्स एप्पल, मैंगो और बनाना शो हो गई है। ये हमारी थी अनऑर्डर लिस्ट जिसमें हमें उसने कोई नंबरिंग वगैरह शो नहीं की। ऑर्डर लिस्ट में वो हमें प्रॉपर नंबरिंग शो करेगा। तो ऑर्डर लिस्ट का कोड भी यहाँ पे मैंने ये रखा हुआ है वर्ड फाइल में। यहाँ से मैं कोड कॉपी कर रहा हूँ। नोटपैड प्लस प्लस में पुराना कोड है, इसको रिमूव नहीं कर रहा बल्कि इसी के नीचे ही मैं अपना नया कोड भी ऐड कर देता हूँ। और अब इस पेज को मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ और ब्राउज़र में जाके पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें उसने
दोनों लिस्ट मुझे शो कर दिए हैं, अनऑर्डर लिस्ट भी और ऑर्डर लिस्ट भी। अच्छा, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट में डिफरेंस क्या है कि अनऑर्डर लिस्ट में आपको जस्ट एक लिस्ट शो होती है, जबकि ऑर्डर लिस्ट का फ़ायदा ये है कि उसमें आपको एक नंबरिंग भी शो हो जाती है कि लास्ट नंबर को देख के आपको आइडिया हो जाता है कि इसमें टोटल कितने लिस्ट आइटम्स हैं, जबकि अनऑर्डर लिस्ट में आपको स्टार्ट से काउंट करने पड़ते हैं। अच्छा, इसके बाद ऑर्डर लिस्ट का टाइप एट्रीब्यूट था, तो मैं इसी कोड को कॉपी कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ वर्ड फाइल से ही कॉपी करता हूँ। ये है एट्रीब्यूट वाला कोड, तो यहाँ से मैंने कॉपी किया इसको नोटपैड++ में। अब मैं इसके नीचे ही दे रहा हूँ ताकि हमें एक तीसरी लिस्ट शो हो जाए एट्रीब्यूट के साथ। बाय डिफॉल्ट जिस ऑर्डर लिस्ट में एट्रीब्यूट नहीं है तो वहां उसने हमें 1 2 3 शो किया था। अब हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया है, इस लिस्ट में है वही ऑर्डर लिस्ट, लेकिन इसमें हमने एक एट्रीब्यूट डाल दिया टाइप और उसकी वैल्यू दे दी है A। तो अब जो हमें लिस्ट शो होगी ऑर्डर लिस्ट, वो इस तरह से ABC की फॉर्म में शुरू होगी, उसकी जो नंबरिंग होगी वो इस तरह से कैपिटल अल्फाबेट्स में शो होगी। जैसे एसेंशियल लैंग्वेजेस फॉर वेब डिजाइनिंग, A है HTML, B है CSS और C है जावास्क्रिप्ट। और अगर यहाँ पे मैं इस कैपिटल A के बजाय स्मॉल a दे देता हूँ, तो अब मैंने फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया तो उसने स्मॉल ABC में हमें शो करवा दिए। तो इसी तरह से अब अगर मैं यहाँ पे टाइप में कैपिटल I प्रेस करूँ तो यहाँ पे आउटपुट में हमने रिफ्रेश करके देखें तो ये रोमन में हमें उसने काउंटिंग शो कर दी है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट का कोड भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपनी जो ऑर्डर लिस्ट ऊपर वाली है उसके नीचे ही नोटपैड में जाके पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये अब हमारी 4th लिस्ट आ जाएगी। इसको मैं यहाँ से टैब करके आगे ले आया हूँ और अब यहाँ से नोटपैड में फाइल को सेव किया Ctrl+S से और ब्राउज़र में जाके यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो ये हमारी लिस्ट यहाँ से ये शो हो गई है। ये ब्लू है और ये रेड है, ये लिस्ट आइटम्स हैं, डेटा टाइप्स हैं और यहाँ पे इनकी डिस्क्रिप्शन है कि ये कलर ब्लू है और इसकी यहाँ पे एसोसिएशन लिखी हुई है द कलर ऑफ डस्ट। इसी तरह ये रेड कलर लिखा हुआ है और यहाँ पे इसकी एसोसिएशन लिखी हुई है कलर के साथ द कलर ऑफ एनर्जी। तो इसके बाद है हमारे पास लास्ट में नेस्टेड लिस्ट। तो यहाँ से मैं नेस्टेड लिस्ट का कोड इधर से वर्ड फाइल से ही कॉपी करता हूँ, यहाँ से ये वाला कोड, और इस कोड को नोटपैड में जाके मैं यहाँ से बाकी सारा कोड मैं रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ बॉडी के टैग के अंदर यही वाला नया कोड पेस्ट कर रहा हूँ और इसको आगे मैंने इंडेंटेशन कर दी इसकी प्रॉपर, और यहाँ पे इसके जो कोटेशन मार्क्स हैं वो एरर दे रहे हैं तो मैंने इनको इस तरह से सेट करके लिख दिया और फाइल को Ctrl+S से सेव किया और यहाँ पे जाके ब्राउज़र में रिफ्रेश किया तो ये देखें अब नेस्टेड लिस्ट हमारे पास शो हो गई है कि ये हमारी एक ऑर्डर्ड लिस्ट चल रही थी जिसका एट्रीब्यूट टाइप A डिफाइन हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर लिस्ट का एट्रीब्यूट टाइप A डिफाइन हुआ है, इसलिए उसने हमें ABC की फॉर्म में ऑर्डर लिस्ट दी है। और अब फर्स्ट आइटम के अंदर हमने मजीद इसको एक और इसमें लिस्ट ऐड कर दिया जो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो यहाँ पे कोड में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये देखें LI यहाँ से स्टार्ट हुआ, पेंसिल लिखा और इस LI का जो क्लोजिंग टैग है वो यहाँ पे ये है। इस टैग को हमने क्लोज करने से पहले यहाँ पे मैं इसको भी थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करता हूँ ताकि आपको प्रॉपर नजर आए। तो यहाँ पे ये LI का स्टार्टिंग टैग और ये LI का एंडिंग टैग, और एंडिंग टैग से पहले और स्टार्टिंग टैग के बाद हमने UL एक और अनऑर्डर लिस्ट इसके अंदर डिफाइन कर दी और उसके 2 लिस्ट आइटम्स दे दिए, पेंसिल और उसकी 2 फॉर्म्स दे दी, 2B पेंसिल और HB पेंसिल, जो यहाँ पे आप आउटपुट में प्रॉपरली देख सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक था। होपफुली आपको लिस्ट अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इशू है, इसको आप बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू है ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से, UI UX डिजाइनिंग के हवाले से या वेब के हवाले से, तो आप नीचे कमेंट में अपना मैसेज दे सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चन का जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच।